Hello students, welcome to my class. I, Dr. Swati Pandya, welcomes you. So students, up till now, in this chapter, that is chapter number 10, we are dealing with microbes in human welfare. And today we are going to start with another topic of the same chapter, that is microbes in sewage treatment. But before going to start this, let us revise all the previous names of the microorganisms which we have already learned. So, actually, firstly, we have started with the microbes useful in household products. And the first name of microorganism was a lactobacillus, that is a bacteria known as lactic acid bacteria. And they are used for converting milk into curd. Then, similarly, another example is of yeast, which is a fungus. Here it is known as baker's yeast, and the scientific name is Saccharomyces cerevisiae. Here, the preparation of bread from a dough with the process of fermentation that is used. So, yeast is a unicellular fungus, and here for baking purpose it is used. That's why it is known as baker's yeast. The next example we have taken for preparation of cheese, and here the large holes in Swiss cheese. This is a particular type of cheese, and these holes, they are due to presence of large amount of carbon dioxide, which are produced by a bacterium known as Propionibacterium shermani. So here, this is the usefulness of few of the microorganism in household products. Then we had discussed earlier in last session about microbes in industrial products. And we have seen how the production of industrial things, they are occurring in large scale. And by using the fermenters, which are very large vessels found in the industrial purposes, they are used. So again, the unicellular fungus, which is yeast, scientific name is Saccharomyces cerevisiae, that is used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum from different malted cereals, fruit juices, or with the other things. So here this is another use of the same organism, that is Saccharomyces cerevisiae. So here we are calling it brewer's yeast. Okay, so it depends upon the question, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है उसी तरह का आपको आंसर देना पड़ेगा. तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको याद रखनी है. फिर आप लोगों ने जरूर देखा ही होगा, इतने सारे चैप्टर्स हमने कंटिन्यू किए हैं, डील किए हैं. जहाँ जहाँ पे भी साइंटिफिक नेम आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मैं उसको अगर इम्पॉर्टेंट होता है तो हाईलाइट भी करती हूँ अलग डिफरेंट कलर यूज़ करके, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है. बट जनरली वी कांट यूज इटैलिक्स इन आवर राइटिंग वर्क, सो वी आर अंडरलाइनिंग देम सेपरेटली. और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जीनस नेम स्टार्ट्स ऑलवेज विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज नेम विल स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर. ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें भी आपको याद रखनी है. Then even other industrial products like preparation of antibiotics, वो भी हमने डिस्कस किया था. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो कि एक्सीडेंटली पाया गया था, मिला था उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को. उनको स्टेफाइलो, he was actually working on staphylococcus bacteria and he observed a mold which is growing in one of his unwashed culture, मतलब लेबोरेटरी में. तो वहाँ पे उन्होंने जब देखा गया तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक मोल्ड था, मींस इट्स टाइप ऑफ फंगस, वो उसकी प्रेजेंस की वजह से वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहा था जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पा रहा था.
तो इस तरह से एक्सीडेंटली एंटीबायोटिक का मालूम चल गया। और एंटीबायोटिक अब तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़फुलनेस बढ़ गया है, और मैनी ड्रेडफुल डिजीज़ जो उस पहले के टाइम में थी, ड्रेडफुल डिजीज़ अभी भी कुछ एरियाज़ में पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं हम, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लेग, वूपिंग कफ, डिफ्थीरिया, लेप्रेसी। ठीक है, इन सबको ओवरकम करने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स का यूज़ चालू किया है या कंटिन्यू किया है। देन दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हमने देखे थे, जिसमें केमिकल्स, एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इस चैप्टर का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करवा रही हूँ आपको साथ साथ में, सो दैट यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स। यहाँ पे भी वन ऑफ द फंगस नोन एज एस्परजिलस नाइगर, it is used for production of citric acid. Similarly, Acetobacter aceti, it is also a bacterium and it is used for preparation of acetic acid. तो ये सारे organic acids हैं. Again, another bacteria known as Clostridium butylicum, used for preparation of butyric acid, and similarly Lactobacillus used for preparation of lactic acid. तो ये सारे अलग अलग organic acids हैं. Then again the same example, yeast, Saccharomyces cerevisiae. Here also it is used for commercial production of ethanol. So it is one type of beverage. So in this way, these few examples again we have to revise. Then enzymes preparation, like enzyme named streptokinase. It is produced by bacterium Streptococcus and it is useful in medicinal purposes. Similarly, fungus named Trichoderma polysporum. It is used for production of a bioactive molecule known as cyclosporin A. And this cyclosporin A is used as an immunosuppressive agent where the organ transplant take place in certain patients. आपने किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉमन है, वो सुन रखा होगा. So generally इस तरह की मेडिसिन दी जाती है. Then another name is of yeast, Monoscus purpureus, and it is used for production of statins. तो इस तरह से हमने इसके पहले ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हैं. आज हम जो नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सीवेज ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हमको सीवेज का मीनिंग मालूम होना चाहिए. जनरली इन सिटीज एंड टाउन्स a major component of this waste water, which is including human excreta. So this wastewater, municipal wastewater is known as sewage. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा, व्हाट डू यू मीन बाय सीवेज. और अब हम इस तरह से सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको कैसे यूजफुलनेस थिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, मीन्स नॉट यूजफुल एक्चुअली, बट एज सच अगर सीवेज वाटर को हम रिवर्स या पॉन्ड्स या उसके साथ हम उसको ड्रेन करेंगे तो इट विल कंटामिनेट वाटर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको डिस्पोजल के पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है सो दैट थोड़ा सा वो साफ हो जाए और फिर हम उसको ड्रेन कर सकें. एक्चुअली इट कंटेन्स large amount of organic matter and microbes also, many of which are pathogenic. So let us see how before disposal the sewage is treated in a sewage treatment plant. इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं STPs. These are sewage treatment plants और बहुत ही बड़े एरिया में ये डेवलप हुए होते हैं, क्योंकि पूरे सिटी का पानी अगर मेट्रो सिटी होगा तो और भी ज़्यादा होगा. इट डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन एंड यूसेज. तो उस हिसाब से बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं. सीवेज इज एक्चुअली ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जस्ट टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग. सो द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द heterotrophic microbes which are naturally present in the sewage, and this treatment is carried out in 2 stages. सबसे पहला स्टेज प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम बोलेंगे, एंड यहाँ पे हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर द फूड डेफिनेटली. एंड इन प्राइमरी ट्रीटमेंट द स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स,
क्योंकि जो बड़े बड़े या थोड़े छोटे पार्टिकल्स हैं उनको फिजिकली भी रिमूव कर सकते हैं विदाउट मशीन्स, ऐसे ही इसको रिमूव किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये आपने प्राइमरी स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा किस तरह से फिल्ट्रेशन किया जाता है, अलग अलग सीव यूज़ करके, छन्नी यूज़ करके। और सेडिमेंटेशन में मोस्टली पूरे उसको ऐसे ही एज सच स्टैटिक पोजीशन में रख दिया जाता है। तो बड़े बड़े छोटे छोटे या उससे भी छोटे जो पेबल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप ही नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन का यूज़ किया जाता है सबसे पहले। And these are removed in stages like initially floating debris is removed by sequential filtration. Then the grit, soil and small pebbles जिसको हम grit बोलते हैं, they are also removed by sedimentation as I have explained you. So all the solids that settle form the primary sludge. ठीक है, ये जो नीचे इकट्ठा होगा उसको हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट, जो ऊपर मोस्टली जो गंदा पानी रह जाएगा उसको हम एफ्लुएंट बोलेंगे। नाउ दिस एफ्लुएंट ओनली फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर नेक्स्ट ट्रीटमेंट विच इज नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से भी पहचानते हैं। तो दोनों ही टर्म है इसके लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। या तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलें क्योंकि यहाँ पे हम मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे। अभी तक प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने खाली उसको सेपरेट किया है, तो वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। Actually, it is a constantly agitated mechanically and air is pumped into it. पूरा जो वेसल है, बड़ा सा लार्ज वेसल, उसको कंटिन्यूसली हिलाया जाता है, एजिटेटिंग इज डन, एंड उसमें साथ साथ एरेशन भी करवाया जाता है। सो एयर सर्कुलेशन प्लस द मूवमेंट, तो दोनों की ही मदद से इट अलाउज एक्चुअली विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। तो सबसे पहले एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है। एरोबिक आपको मालूम है ये टर्म, व्हेन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी आर नेमिंग इट एरोबिक रेस्पिरेशन। सो हियर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर रेस्पायरिंग विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे एरोबिक माइक्रोब्स का यूज किया है। एंड एक्चुअली दे आर फ्लॉक्स। फ्लॉक मीन्स the masses of bacteria which are associated with fungal filaments just to form a mesh like structure। ठीक है, दोनों का मिक्स है, masses of bacteria along with fungal filaments, उसको हम बोलेंगे flocks। While growing these microbes they consume the major part of organic matter which are present in effluent। क्योंकि जो भी effluent था प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सेपरेट हुआ था, एक तो प्राइमरी स्लज जो नीचे इकट्ठा हुआ था और ऊपर जो था तैरता हुआ वो एफ्लुएंट था, पानी जैसा स्ट्रक्चर। सो इस एफ्लुएंट में से जो भी और भी ऑर्गेनिक मैटर है वो माइक्रोब्स कंज्यूम कर लेंगे, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेंगे, वो एज अ फूड उसको यूज करेंगे। एंड दैट इज वाई दिस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एंड द BOD विच इज नोन एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो एफ्लुएंट का जो BOD होगा उस पे इसका चेंज देखा जाएगा। सो BOD रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। तो ये एक इसका मेजरमेंट है। एक्चुअली द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड, क्योंकि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब तक डिमांड रहेगी मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट है। जैसे ही BOD रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, दैट मीन्स उसका प्यूरिफिकेशन मोस्टली हो गया है, या ऑर्गेनिक मैटर जो भी था वो टोटली एरोबिक बैक्टीरियाज ने कंज्यूम कर लिया है, इसका ये मीनिंग निकलता है। So the BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a very sample of water, and thus indirectly BOD is a measure of organic matter which is present in water। तो हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसके बेसिस पे, that greater the BOD of waste water, more is its polluting
पोटेंशियल। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ग्रेटर द बीओडी, मोर इट इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, रिड्यूस्ड बीओडी, दैट मीन्स द पोल्यूशन विल बिकम लेस और ऑलमोस्ट नील, इट डिपेंड्स। तो इस तरह से वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और वाटर वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब नेक्स्ट पार्ट होगा सेटलिंग टैंक, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। उनको भी इस तरह से सेटल करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सो दस दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। इसका ये भी स्लज है, मास ऑफ द बैक्टीरिया अलोंग विद द फंगस, सो इसको भी हम स्लज बोलेंगे, बट दिस इज एक्टिवेटेड स्लज क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी रहेगी। इसके पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी स्लज, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा था, एंड इट वाज प्रेजेंट इन फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस, तो वो अलग है, ये अलग है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज हमको मिलता है, इसका एक छोटा सा पार्ट लेके फिर से इसके पहले वाले टैंक में, मतलब एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम वर्ड हमने कर्ड प्रिपरेशन में समझा था। जब कर्ड प्रिपेयर किया जाता है तब भी थोड़ा सा कर्ड लेके मिल्क में उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, तभी बैक्टीरियल ग्रोथ एनहेंस होती है। सिमिलरली हियर ऑल्सो द बैक्टीरियल ग्रोथ in the aeration tank that is enhanced by using this inoculum of activated sludge, and the remaining major part of sludge is pumped into large tank known as anaerobic sludge digester. अब ये जो भी है एक्टिवेटेड स्लज, उसके अंदर माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनको फिर से अब कंज्यूम करना पड़ेगा, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब जो एनएरोबिक बैक्टीरियाज हैं वो इन पे डिपेंडेंट रहेंगे। सो हियर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली digest the bacteria and fungi which are present in sludge. So during this digestion, bacteria produce a mixture of gas, for example methane, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको हम H2S, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2, एंड मीथेन CH4। तो इस तरह की गैसेस, वेरियस गैसेस दे आर रिलीज्ड एंड दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है कि इसको बायोगैस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली हम पूरा बायोगैस का एक अलग से टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, बट बिफोर दैट इसका थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हम दीज गैसेस विच आर प्रोड्यूस दे आर एक्टिंग एज बायोगैस and can be used as a source of energy because they are inflammable, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़ा अभी, एंड इवन इट इज़ वेरी स्कोपफुल, क्योंकि दिन दिन पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, और ये प्रॉब्लम रहेगा ही। और अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट के जो लेवल्स हैं उनको भी हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक फ्यूचर के लिए भी आपको इम्पॉर्टेंट लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप बड़े होके इस फील्ड में भी जाते हो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, तो भी आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। लास्टली I would end my today's topic just before that informing certain few things more. The number of sewage treatment plants actually has not increased enough to treat such large quantities, क्योंकि मैंने आपको जैसे भी बताया कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कंपैरेटिवली पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, बट उसको करेक्ट करने के लिए, उसको कम करने के लिए उसके जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो हमारे पास पूरे नहीं हैं। So the untreated sewage is often discharged directly into the rivers, which lead to pollution of them and increase in waterborne disease। बहुत सारे इसके गैर फायदे हैं, नुकसान ही नुकसान है। एक तो फूड चेन में भी ये गंदा पानी इन्वॉल्व हो जाता है, साथ साथ में पॉल्यूशन की वजह से कई बीमारियां होती हैं, और अगर गंदा पानी होगा तो इवन एनिमल्स को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी वो अफेक्ट करेगा। सो एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एज वेल एज फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड सर्टन प्लान्स जस्ट टू क्लीन देम,
because Ganga and Yamuna, they are the sacred rivers in India. So Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan started, it is initiated just to save these major rivers of our country from pollution. But still, there is lot of scope just to improve them, just to make them in a proper way. So this was all about today's topic. You just go through all the things, और डेली आप रिवाइज करते रहना, एग्जाम्पल्स रिवाइज करते रहना. यहाँ पे पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम के साथ एग्जाम्पल्स नहीं दिए हैं, बट एरोबिक एंड एनएरोबिक बैक्टीरियाज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखा हमने इन सीवेज ट्रीटमेंट. सो ओके, टुडे वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर. टेक केयर. बाय बाय स्टूडेंट्स.